हम स्पीकर पॉज कर देते हैं। आपने जो शेड्यूल कर रखी है वो चल रही है ना सर? हाँ चल रही है, उसमें ऐड करना है, फिर पॉज कर रखो। हाँ ये पॉज कर दो। और चालू करिए। चालू 4 बच्चे जुड़ गए। चार बच्चे 5 बच्चे जुड़ गए। अब चालू करिए। चालू है इसमें। इधर वाले को क्या करना है? ये हटाना। सही है, हटाना। Hello students. Good morning, sir. Good morning to all of you. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Today we discuss about the orientation rule of benzene. Okay. What is the meaning Yes, of sir. orientation? Orientation means group. Some groups are added in the benzene ring, and at which position it enters. Means if benzene ring, you see in the structures, this is the benzene ring. This is the benzene Yes, sir. first, okay, and this is the second. You can see this is the pi electrons, double bond, single bond, double bond, single bond, and there is another structure second too. These bond, pi electrons are moved alternately, so that we get the resonating structures number 1 and number 2 due to movement of pi electrons, because pi electrons are loosely bonded and they move in the form of cloud, and it forms the structure 1 and structure 2. This is the benzene ring, and it is known as resonance structures. And this is not a real structure, this is the imaginary structure. Okay, and between these two structures there is another structure, that is a hybrid structures, and these hybrid structures, due to delocalization of electrons, pi electrons, so that we can show the it by the ring inside the benzene. Okay, and it is due to movement of this one pi electrons, and these two structures, this is the resonating structure, is not a real structures, and we cannot explain the all properties of benzene by these two structures. For examples, 154 picometers bond length between the two carbon atom attached with the single bond, and when two carbon atom attached with the double bond, the 133 picometers, this is the bond length. But by the experiments, it proved that bond length of the benzene ring are same, and nature of bond length are same, bond strength are same, and nature of the bonds are same. So that these structure cannot explain, because bond length of the these structures are different. That is a bond length between the two carbon atom which is attached with the single bonds, and double carbon atom attached with the double bonds. These bond length are different, but by the experiment it proved that all bond length of the benzene rings are same, and bond nature are same, and bond strength are same. Okay, so that this structure is that is a hybrid structures, and this the dotted designs explain the delocalization of pi electrons inside the benzene rings, and the bond length of the benzene rings is
139 picometers for all bonds. That is between the single bond and between the double bond. Okay, bond length is 139 picometers. Means bond length of the all carbon between the all carbon atoms are similar. So that these structures explain the bond length are same, and it can be explained by the hybrid structure of the benzene rings. And you see, this is the benzene rings. All of you know benzene, formula of benzene is C6H6, and you see these structures. C6H6 can be represented in the benzene rings. All carbon atom attached with the hydrogen atoms, and all carbon is sp2 hybridized. And when we attacked by the any electrophiles, for example chlorine that is Cl2 is attacked on the benzenes, it forms the chlorobenzenes. You see in the structures, this is the 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, 5 number, 6 number, these carbon atoms. At any positions, chlorine enters, it forms the chlorobenzene. There is no problem. If it enters into the one positions, we get the chlorobenzenes. It enters into the second positions, we get the chlorobenzene. It enters into the third positions, we get the chlorobenzenes. Means किसी भी पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन जाएगा, क्लोरीन इंटर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा. ठीक है. अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब कोई ग्रुप उसके अंदर आता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल से हम उसको रिएक्शन कराते हैं, तब प्रॉब्लम आती है. When two groups is present in the benzene ring, for example, you see in the structures, group 1 is represented by G1 and group 2 is represented by G2. Okay, when group 1 is present, then it follows certain rules. Means at which position it goes, the second incoming group is entered in the benzene rings. जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप यदि यहाँ पर प्रेजेंट है तो इनकमिंग ग्रुप किस पोजीशन पे जाएगा. इनकमिंग ग्रुप जो है ना, ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है, मेटा पोजीशन पे जा सकता है और पैरा पोजीशन पे जा सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप्स. ठीक है. अब देखोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड देखो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये सेकेंड पोजीशन जो है ये ऑर्थो पोजीशन कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू G1. ये G1 है, G1 के जस्ट बाद वाला जो सेकेंड नंबर है वो ऑर्थो पोजीशन कहलाएगा. दूसरा देखो, तीसरा नंबर G1 के रिस्पेक्ट में ये थर्ड पोजीशन है, तो ये 1-3 पोजीशन जो है मेटा पोजीशन कहलाएगा. और चौथा पोजीशन है 1 और 4 के बीच में, देखो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में चौथा पोजीशन, ये 1-4 पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन कहलाएगा. अब दूसरे साइड से आप देखो, ये देखो ग्रुप 1 है, फिर यहाँ पर G2 इधर लिखा है, ये क्या फर्स्ट ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन है, सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थो पोजीशंस. ये ऑर्थो पोजीशंस इधर हो गया. फिर ये 3 नंबर वाला मेटा पोजीशंस हो जाएगा. तो दोनों साइड क्या है, ग्रुप 1 के साइड से दोनों पोजीशन, जस्ट उसके नीचे वाला जो है दोनों साइड ऑर्थो हो जाएगा, उसके बाद थर्ड पोजीशन वाला दोनों साइड मेटा पोजीशन हो जाएगा, और फोर्थ पोजीशन जो है पैरा पोजीशन होगा. अब ये जो है पोजीशन से क्या है, ये एक सिस्टम. अब क्या है, ये ग्रुप है, तो ग्रुप अब कितने तरह का होता है, ग्रुप 2 तरह का होता है. ग्रुप का नेचर 2 तरह का होता है. एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शॉर्ट में लिखते हैं. देखो ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शॉर्ट में करते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप.
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब होगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो वो क्या इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन में जाएगा, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में जाता है और पैरा पोजीशन में जाएगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेगा, उसको सेकंड इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेज देगा, या और सो दैट इट इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स, जो ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा यदि एक पहले से ग्रुप प्रेजेंट है तो। दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। मतलब ये ग्रुप यदि इस तरह का ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि है बेंजीन रिंग में, तो आने वाला जो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा। ये रूल्स है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखो कौन कौन से मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ग्रुप व्हिच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग्स in presence of benzene rings, presence of electron pair or ability to donate the electrons। मतलब उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा या लोन पेयर्स होगा जो वो डोनेट कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप कौन कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, एमिनो ग्रुप्स, हैलोजन सारे आ गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद ये क्या है, NHR, डेरिवेटिव्स ऑफ एमीन ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स में क्या होगा, मिथाइल अल्काइल, मिथाइल ग्रुप्स, इथाइल ग्रुप्स, प्रोपाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप्स, ये सब अल्काइल ग्रुप्स में आ जाते हैं। O-, ये ऑक्साइड आयन है। OR, ईथर ग्रुप्स। These groups sends the incoming groups to the ortho and para positions, and it can be represented by, for example, in the benzene ring, if number one positions, if OH group is present in the number one positions, okay, and when any electrophile attack on this phenol, this is a phenol, attack on the phenols in presence of catalyst, it goes to the ortho positions or para positions, so that we get the ortho substituted phenol and para substituted phenols। मतलब दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन में जो इनकमिंग ग्रुप हो जाएगा, कोई जो ग्रुप होगा उसके नाम से उसका नाम हो जाएगा। सपोज करो OH के बाद आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हो तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल्स। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाएगा तो पैरा नाइट्रो फिनॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। अब इसके अंदर आप देखो कि क्या ऑर्थो पोजीशन में जा रहा है और पैरा पोजीशन में जा रहा है। इसको हम मैकेनिज्म से समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, देखो ये ऑक्सीजन है, OH में हम इस तरह से फिनॉल ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, O और सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन अटैच बाय द सिंगल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर देखो इसके पास क्या है, दो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स इधर है और दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास रहेगा वही दे सकता है। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। मतलब ये ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को देगा। बेंजीन रिंग क्या है, सिस्टम है। और कौन सा सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। तो ये बेंजीन रिंग में कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये सिस्टम को देगा। तो कोई सा भी ग्रुप जो सिस्टम को देगा वो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप कहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर OH क्या है, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है। ऊपर में आप देखें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे एमिनो ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप्स है, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करा, ये इस कार्बन नंबर 1 वाले कार्बन को रिलीज करता है, डोनेट करता है। तो क्या होगा यार, 2 इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक क्या, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जस्ट सेकंड नंबर स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, एक उधर सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके आगे देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर 1 के पास क्या है, 1 और 2 के बीच में जो है ना अल्टरनेट बॉन्ड जो दिए है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये मूव करेगा तो यहाँ 2 नंबर पे कार्बन पे आ रहा, 1 नंबर से 2 नंबर पे आ रहा, तो 2 नंबर पे आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं ये सर्कल बना करके, और एक यहाँ से जो है ना डॉटेड लाइन डाल दी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। एक बॉन्ड हो गया इसलिए ये सिंगल लाइन से शो कर रहा है। ये यहाँ पर क्या ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर पे क्या डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन आया उस कार्बन एटम पे, और दूसरा क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे मूव किया। आगे मूव करने के बाद क्या ऑर्थो पोजीशन पे ये चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन जब आ गया है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं हम, ये माइनस चार्ज। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई यहाँ, इसीलिए यहाँ पर क्या माइनस चार्ज है। अब थर्ड स्ट्रक्चर्स देखो आप, यहाँ पर क्या है, ये मूवमेंट अब यहाँ पर से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो ये 4th पोजीशन पे आया, तो यहाँ पर ये देखो ये 4th पोजीशन पे आ रहा, और यहाँ वाला ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये 4थे नंबर कार्बन पे जाएगा। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, मूव कर करके 4थे नंबर पर पैरा पोजीशन पे आ गया। ये चार्ज यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 4थे नंबर मतलब पैरा पोजीशन पर बढ़ गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी, ऑर्थो पोजीशन पे मतलब 2 नंबर कार्बन पे था। अब यहाँ पर क्या है, तीसरे स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये पैरा पोजीशन पे कार्बन की डेंसिटी बढ़ी हुई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव किया तो यहाँ पर आ रहा है ये 5वें पे, तो यहाँ 5वें पर ये आ गया, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये जो बॉन्ड था यहाँ पे था, और ये मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का हुआ तो ये यहाँ पर आ गया ये बॉन्ड। अब देखिए आगे, अब क्या है कि यहाँ पर से ये बॉन्ड जैसे यहाँ से ये इस पे आ गया तो यहाँ ये शो कर रहा है बॉन्ड। अब ये वाला जो है यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव किया तो ये 5वें नंबर, ये जो है ना ये लास्ट, ये यहाँ पे देख रहे हैं एरो, यहाँ पर ये चार्ज आ गया, मतलब दोबारा ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, या OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन पे आ गया, मतलब दोबारा ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, फिर पैरा पोजीशन पे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रहा है। अब इसके आगे आप देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फिर यहाँ से ये मूव किया इस आगे वाले पे आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है आप देखो इसको कि ये यहाँ पर पोजीशन आ गया। अब इसके बाद दो बॉन्ड पहले से है, इसमें देखो जो पोजीशन है ये दोनों का पोजीशन पहले जैसा है यहाँ पर, और ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पे गया तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया। अब क्या स्थिति है, ये फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर आप देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या थी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या थी। तो फर्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो सेकंड से जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, बाद बाकी अल्टरनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्ड इस तरह से है, कंजुगेटेड सिस्टम में है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, फिर OH को इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, इलेक्ट्रॉन OH पे चला गया। OH पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड क्या ब्रेक हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर OH जो है ना पहले वाले पोजीशन में चला गया और यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स OH ग्रुप पे आ गया।
तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये पोजीशन फिनॉल वाला जो फर्स्ट था वो सेकंड फिफ्थ वाला सेम आ गया है, सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या है, हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम शो कर सकते हैं, इसमें देखो कि ऑर्थो पोजीशन दोनों मतलब विथ रिस्पेक्ट टू OH, इधर वाला ऑर्थो पोजीशन इधर वाला ऑर्थो पोजीशन, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी हुई है, मतलब नेगेटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशंस पे, और पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रिक लविंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग। तो अट्रैक्ट किधर होगा, जब पॉजिटिव चार्ज से है इलेक्ट्रोफाइल तो वो किधर जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है जहां पर। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या नहीं तो ये पैरा पोजीशन पे जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो इस तरह से ये ग्रुप क्या करता है, इसको डायरेक्ट भेजा कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, इसलिए कहते हैं इस ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। अब दूसरा एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, देखो इसमें क्या एमिनो ग्रुप्स भी उसी ग्रुप में आ रहा है। अब एमिनो ग्रुप में नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस नंबर 1 कार्बन एटम को जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर ये पी इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ दूसरे पोजीशन पे आ गया, तो ये दूसरे पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। फिर अब ये जो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा आगे, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ये, तो यहाँ पर इधर बॉन्ड बनाया, और ये पहले वाला बॉन्ड का पोजीशन सेम है, ये यहाँ पर सेम है, आप देख लो। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो ये पैरा पोजीशन पे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ये पैरा पोजीशन पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अगले वाले कार्बन पे जाएगा, ये देखो यहाँ ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर। उसके बाद ये वाला बॉन्ड पहले, ये वाला जो बॉन्ड है ये पहले जैसा है, पहले पोजीशन में, तो ये है। तो इस तरह से ये मूवमेंट होगा, और फाइनली क्या आप देखो यहाँ पर का, फिर ये यहाँ पर से जो है ना ये मूव करेगा, ये वाला ये जो बॉन्ड है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो आगे वाले कार्बन पे जाएगा, तो आगे वाले कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दोबारा आ गया। अब उसके बाद फिर अब ये इससे आगे वाले में यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव जैसे करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड आ गया, और ये पहले वाला 2 बॉन्ड है जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में बॉन्ड है, तो ये एक बेंजीन रिंग बन गया। अब यहाँ पर तो क्या है कि बॉन्ड बना दिया, और उसके बाद यहाँ से मूव जब करेगा, तो यहाँ पर देखो आप ये जो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड से फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो एमिनो ग्रुप के पास चला जाएगा। तो एमिनो ग्रुप के पास जब जाएगा, यहाँ पर जो है ना टू डॉट से हम शो कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस इसके पास आ गया, फिर एनिलीन बन गया एज इट इज। बस सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज हो गया। अब इसके अंदर भी देखो आप, ऑर्थो पोजीशंस पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और पैरा पोजीशन पे, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। इसमें कौन से ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। तो दीज ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स,
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ से करेगा? बेंजीन रिंग से करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम से करेगा। तो दीज ग्रुप्स आर डायरेक्टिंग द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजिशन। ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। अब सपोज करो कि पहले से बेंजीन के अंदर ये नाइट्रो ग्रुप हमने डाल दिया, जो कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा इस पे नाइट्रो बेंजीन पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो बेंजीन बनाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा, और मेटा पोजीशन पे जब जाएगा तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो बेंजीन बनेगा। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, CONH-एमाइड ग्रुप्स है, COCl ग्रुप्स है, सल्फोनिक ग्रुप्स है, एल्डिहाइड ग्रुप्स है। ये सारे ग्रुप्स जो है इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में। अब इसकी मैकेनिज्म आप देखिए कि इसके अंदर क्या है। अब देखो जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लिख सकते हैं C≡COH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये ऑक्सीजन क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड क्या है? डायपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो ऑक्सीजन के पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉन्ड के यहाँ से हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था। ये वाला डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप देखो ये क्या है? यहाँ वाला कार्बन एटम, ये देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स था, जो बॉन्ड है ये जो है ना ऊपर की ओर मूव किया, सिस्टम से बाहर जा रहा है, कार्बन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए कार्बन में क्या डबल बॉन्ड बना रहा है ये। और ये वाला जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन को दिया, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया? इस कार्बन एटम से नंबर 2 कार्बन एटम से जैसे ये मूव किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या है? उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला COOH वाले ग्रुप में ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके आगे देखो जरा से ये मूवमेंट करेगा, फिर मूव करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया, तो ये बॉन्ड आ गया, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। तो इस तरह से आप देख लो, तो यहाँ पर से जैसे मूव किया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऊपर वाली पोजीशन सेम है। अब यहाँ पर देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद क्या है? ये पहले वाला सेम है। तो यहाँ पर से क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, और ये वाला जो है बॉन्ड ये इधर आएगा तो यहाँ पर क्या है? ये सिंगल बॉन्ड हो गए, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा, ये वाला जब ब्रेक होगा तो इस तरह से आप देखो C डबल बॉन्ड पहले वाले पोजीशन में आ गया, C डबल बॉन्ड OH। तो ये पहला स्ट्रक्चर्स और पांचवा स्ट्रक्चर्स दोनों क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है या बेंजोइक एसिड्स आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? ये पोजीशन सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। तो आप देखो इसके अंदर ये हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर यदि निकालते हैं तो इसमें देखो आपकी कहाँ कहाँ पॉजिटिव साइन है। ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव साइन है और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव साइन है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? बेयर्स द पॉजिटिव चार्ज सो दैट दे कैन नॉट एंटर इनटू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे देखो दोनों साइड शो हो रहा है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। और ये यहाँ पर आप देख लो, आप ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर,
ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे। तो पॉजिटिव चार्ज हम दोनों जगह ऑर्थो पोजीशन पे शो कर दिए और पैरा पोजीशन पे शो कर दिए। तो बचा क्या, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको कहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, मेटा पोजीशन पे, सो दैट दे गो टू द मेटा पोजीशन। तो वो इनकमिंग ग्रुप क्या है, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, सो दैट वी गेट द मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये दूसरा एग्जांपल साहब ये देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आप देख लेगा, सिमिलर चीज है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, इसलिए सिर्फ ये जाएगा कहाँ, तो मेटा पोजीशन पे जाएगा, जहाँ मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जाएगा मेटा पोजीशन पे, ये मैकेनिज्म है। अब ये बेंजीन रिंग ओरिएंटेशन इन नैप्थलीन, ये नैप्थलीन में क्या है, सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले नैप्थलीन की स्ट्रक्चर देखो, when two benzene rings are fused at ortho positions, they form the naphthalenes, and we get the naphthalene from coal tar as well as from petroleum product। और इस पे जो है ना, देखो नंबर 1 इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर ये जो है ना इसके जस्ट बेंजीन वाले ये नंबर नहीं होते हैं, इसके दूसरे रिंग में इंटर करता है, जैसे पहला आएगा यहाँ पे तो 5, 6, 7, 8, 9 और फिर नीचे की तरफ आएगा ये 10। इस तरह से यूपेक में नोमेनक्लेचर होता है नैप्थलीन का। और ये एक नंबर वाला जो कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं और दूसरे नंबर वाले को बीटा बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये नैप्थलीन्स है, तो नैप्थलीन के अंदर जब आप बेंजीन रिंग्स का बॉन्ड बनाएंगे तो ये फर्स्ट वाले में जो अल्टरनेट बॉन्ड हो जाएगा, अल्टरनेट बॉन्ड दे दिए, और उसके बाद ये जो कॉमन हो गया है दोनों बेंजीन रिंग के बीच में, उसके बाद फिर ये छोड़ देंगे, उसके बाद वाला आ जाएगा, उसके बाद ये एक छूटेगा, फिर उसके बाद वाला आ जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा। तो ये नैप्थलीन्स का स्ट्रक्चर्स है। और नैप्थलीन पे जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तब यहाँ पे देखो आप, ये अल्फा प्रोडक्ट बन रहा है और ये बीटा प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैक्सिमम तो अल्फा प्रोडक्ट बनता है और बीटा प्रोडक्ट कम बनता है, जनरली अल्फा प्रोडक्ट बनता है। तो अब ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो इसके अंदर देखो कि ये जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो माइनस शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ से जो है ना ये यहाँ पर ये बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इधर मूव किया है, यहाँ पर पॉजिटिव बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स ये फर्स्ट नंबर पे जो है ना इलेक्ट्रोफाइल आ गया। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हटा दो तो यहाँ पे माइनस चार्ज शो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हो गया।